اگر ہم نے احتیاط نہ کی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا مشکل وقت آپ کے لیے آنے والا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کرونا نے پھیلنا ہے. ہمارے خیال میں جو پیک ہے وہ جولائی کے آخر میں یا اگست میں آئے گی. ہم جتنا مرضی کہتے ہیں، لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں. جولائی اگست میں کرونا ملک میں عروج پر ہوگا. وزیر اعظم کی تنبیہ، وائرس نے پھیلنا ہی ہے، رفتار کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. جب بھی باہر جائیں ماسک لازمی پہنیں. ماسک سے 50% بیماری سے بچا جا سکتا ہے. رواں ماہ مزید 1000 ICU بیڈز کا بندوبست کریں گے عمران خان. شیخ رشید، شاہد خاقان عباسی اور طارق فضل چودھری بھی کورونا کا شکار. تینوں رہنماؤں کے ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے. خود کو گھر پر قرنطینہ کر لیا. صدر عارف علوی کا وزیر ریلوے سے رابطہ، صحت یابی کی دعا. سپریم کورٹ کا ہفتہ اتوار کو مارکیٹس کھولنے کا حکم واپس. حکومت نے اب تک وبا سے بچاؤ کے لیے قانون سازی نہیں کی. دیگر ادارے کام کر سکتے ہیں تو پارلیمنٹ کیوں نہیں؟ پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کا تحفظ نہیں ہوگا. چیف جسٹس کے کرونا از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس. 22 کروڑ آبادی کے لیے صرف 100 لیبارٹریز، 30,000 ٹیسٹ نہ ہونے کے برابر. جو سامان منگوایا گیا اس کی دستاویزات ریکارڈ پر کیوں نہیں؟ سب کا آڈٹ کرائیں گے. چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس. کورونا نے آفت مچا دی. کیسز کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز. مزید 65 افراد جاں بحق. اب تک 2067 اموات. پنجاب میں 38,903، سندھ 38,108، خیبر پختونخوا 13,487، بلوچستان میں 6,516 افراد وائرس کا شکار. 34,355 مریض صحت یاب. ہزاروں پاکستانی بیرون ملک بے یار و مددگار بیٹھے ہیں. خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. واپسی کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ احسن اقبال کا سوال. UAE، سعودیہ اور دیگر ممالک سے رابطے شروع. مراد سعید کا جواب. ملک میں کورونا سے 3 کروڑ افراد متاثر ہونے کا خدشہ. ریاض فتیانہ. ارکان پارلیمنٹ کو ممنوعہ بور کا اسلحہ لائسنس فراہم کرنے کا مطالبہ. حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی حمایت. سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور. اسٹیل ملز کے مستقبل کے فیصلے کا اختیار صرف مشترکہ مفادات کونسل کو ہے. رضا ربانی. شریف برادران سے ذاتی لڑائی نہیں، ان کے پیسہ باہر لے جانے سے ملک معاشی بحران کا شکار ہوا. چینی آٹا رپورٹ پچھلے سالوں کی ہے. اس دفعہ گندم بحران نہیں ہوگا. فواد چودھری. احسن اقبال کی مشکل میں اضافہ. ناروال سپورٹ سٹی کیس انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل. نیب کی پیش رفت رپورٹ اسلام آباد کے احتساب عدالت میں پیش. تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ریفرنس دائر کرنے کی یقین دہانی. پیٹرول بحران حکومتی نظام کے مفلوج ہونے کی نشانی. عوام کو سزا نہ دی جائے، سرکار فوری حل نکالے. تیل کی قیمتوں میں تاریخی کمی کا فائدہ بجلی کے نرخ کم کر کے دیا جانا چاہیے. شہباز شریف. پیٹرول کی قلت پر حکام کو ہوش آ ہی گیا. ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ وجوہات کے لیے کمیٹی قائم. ملوث آئل کمپنیز کا مارکیٹنگ لائسنس بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے. نوٹیفیکیشن جاری. وزیر اعظم سے معاشی ٹیم کی ملاقاتیں. معیشت کی صورتحال پر غور. بجٹ تیاریوں پر مشاورت. حفیظ شیخ کی آئندہ سال کے میزانیے پر بریفنگ. رواں
माली साल मुल्क की मईशत के लिए तबाही का साल साबित। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और कानकनी की पैदावार मनफी रही। ज़राअत, लाइव स्टॉक, फिशरीज, सर्विसेज सेक्टर भी हदफ पूरा ना कर सके। इक्तिसादी सर्वे के खदोखाल दुनिया न्यूज पर। बजट में रिलीफ मिलेगा या नहीं, मजदूर तबका बेचैन। हालात पहले बदले ना अब उम्मीद है, मेहनत कश मायूस, मीजानिया गोरख धंधा करार। साढ़े कोई महीने बाद कोई साड़ी खर्ची दी जावे 12,000 15,000 साढ़ा सर्कट चलवाओ, असा भुखे मरते पे हैं, साढ़े कुल कुछ भी को नहीं। आ मजदूरी एक दिन कमाने 4 दिन नहीं लगती। हमें तो कोई मसला नहीं, हमें तो भूखे मर रहे हैं, हम क्या करेंगे। दिहाड़ी आपको पता है भाई 1 लगती है तो 10 नहीं लगती। कोरोना की वजह से लोग काम करवा नहीं रहे। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हम गरीबों के लिए कुछ रोज़गार दिया जाए जिससे हम 2 वक्त की रोटी कमा सके। मुझे तकरीबन 15-16 दिन हो गए कोई रोज़गार नहीं मिल रहा। अभी तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है भी खाना खाना। अमरीकी सहाफ़ी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त। जवाब जमा न होने पर एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद का बरहमी का इजहार। पुलिस हुकाम से 12 जून को फिर जवाब तलब। बहुत जल्द साजिशों से पर्दा उठाऊंगा, अवाम के सामने हकाइक रखूंगा। इल्जामात पर अदालत से रुजू किया, जियाले मुत्तहिद रहें और किसी साजिश का हिस्सा न बने। रहमान मलिक। कोरोना बेकाबू, अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा। वफाकी हुकूमत का जून में मजीद 1000 ICU बेड्स फराहम करने का फैसला। 1 हफ्ते में 250 वेंटिलेटर्स तकसीम किए। सूबों से मुकम्मल ताउन जारी है। असद उमर। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की किट्स खत्म। मेयो, जिन्ना सर्विसेज और जिन्ना अस्पताल में सैंपल लेना बंद कर दिए गए। सलाहियत बढ़ने से किल्लत हुई, बजट फराहम कर दिया गया। सेक्रेटरी सेहत पंजाब। पेशावर में कोरोना के मुअम्मर मरीज की सालगिरह मनाने की ख्वाहिश पूरी। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 71 साला असद नवीद का केक काटा गया। डॉक्टर्स का तालियां बजाकर खुशी का इजहार। मेडिकल स्टोर्स के बाद दूध दही की दुकानें, बेकरीज भी पाबंदी से आजाद। पंजाब में चिकन और मीट शॉप सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। तमाम SOPs पर अमल दरामद लाजिम। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और सजा नोटिफिकेशन जारी। पचपन साल से ज्यादा उम्र के अरकान को शिरकत की इजाजत ना दी जाए। मेंबरान को फेस मास्क और SOPs पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। वजीर सेहत अजरा पिचोहो का स्पीकर सिंध असेंबली को खत। सिंध हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोबारा बंद करने का इंदिया। SOPs की खिलाफ वर्जी होती रही तो फैसला करने पर सोचेंगे। ट्रैफिक पुलिस भी ताउन नहीं कर रही। वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह। बलोचिस्तान में 2 माह बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। मुसाफिर एक सीट छोड़कर बैठ सकेंगे। टैक्सी में सिर्फ 3 अफराद को जाने की इजाजत होगी। SOPs पर अमल दरामद लाजिम होगा। तर्जुमान लियाकत शाहवानी। वजीर सेहत पंजाब का सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर सुलेमान अली इफ्तिखार की हलाकत का नोटिस। बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। यास्मीन राशिद। वजीर आला पंजाब से स्पीकर परवेज इलाही की मुलाकात। गलत फहमियां पैदा करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। काफ लीग इत्तेहादी जमात साथ लेकर चलेंगे। उस्मान गुस्तार।
ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन एहतसाब से नहीं बच सकती। चीनी स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के हुक्म पर वजीर आजम को खिराज तहसीन। इमरान खान का इंसाफ और एहतसाब का जज्बा गैर जानिबदार है, फैयाजुल हसन चौहान। ऑरेंज लाइन ट्रेन के किराए के तायुन के लिए पंजाब असेंबली में आम बहस। किराया 30 रुपए से जायद नहीं होना चाहिए, नून लीग का मुतालबा। तहरीक इंसाफ की सब्सिडी देने की मुखालिफत। सदर आरिफ अलवी ने वजारत मैरी टाइम अफेयर्स की वेबसाइट का इजरा कर दिया। आलमी यौम बहर पर मिनिस्ट्री के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। पाकिस्तान को समुद्री तिजारत का हब बनाना चाहते हैं अली जैदी। वेलकम बैक। वजीर आजम ने तंबीह की है कि जुलाई अगस्त में कोरोना मुल्क में उरूज पर होगा। उनकी जानिब से कहा गया कि वायरस ने फैलना ही है। रफ्तार कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जब भी बाहर जाएं मास्क लाजमी पहने। मास्क से 50% से ज्यादा बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि एहतियात ना की गई तो पाकिस्तान भी यूरोप ब्राजील बन सकता है। माह मजीद 1000 ICU बेड्स बंदोबस्त करेंगे। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया ने लॉकडाउन खोल दिया है। अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि कोरोना वायरस मुल्क में खत्म हो जाएगी। मुश्किलों से हमने जो अल्लाह का करम है कि बहुत ज़्यादा पैसा बड़े कम वक्त में बड़े लोगों को एक शफाफ तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से वो मसले नहीं लोगों के आए जो कि और दुनिया के अंदर आ रहे हैं और गरीब मुल्कों के अंदर आ रहे हैं। सारी जो इस वक्त हमारी जो जद्दोजहद वो ये है कि कोरोना आहिस्ता फैले, तेजी से ना फैले। हमें पता है कि कोरोना ने फैलना है। पाकिस्तान में कोशिश ये रही है कि ये जो पीक है ये तेजी से ऊपर ना जाए बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए, ताकि हमारे अस्पतालों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। अपील कर रहा हूं कि अपने लिए आपके घर में बुजुर्ग होंगे, इनकी जानें खतरे में। हम जितना मर्जी कहते हैं लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। हर जगह जब आप बाहर निकले ये मास्क पहने। साबित हो गया दुनिया में कि ये इसका जो फैलाव होता है, जो जितनी तेजी से ये फैलती है, ये मास्क की वजह से तकरीबन 50% फर्क पड़ता है। 1000 बेड्स जिनके ऊपर ऑक्सीजन हो सारे पाकिस्तान के अंदर अब हम इंशाल्लाह इसी महीने में पहुंचा देंगे। खबर यह है कि वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी और हुकूमती MNA फैजुल हसन भी वायरस का निशाना बन गए हैं। मुतासिरा सियासतदान घरों में आइसोलेट हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ता इतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस ले लिया है। हुकूमत ने अब तक वबा से बचाव के लिए कानून साजी नहीं की है। रिमार्क्स दिए गए कि दीगर इदारे काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम का तहफ्फुज नहीं होगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। भारत की फजाई हमले की धमकी गीदड़ भभकी करार। भारत फरवरी में दिए गए पाकिस्तान के मौसर जवाब को याद रखे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से ऐसा कहा गया है। आयशा फारूकी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने अज़्म और सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा किया और भारत ऐसी किसी छेड़छाड़ से पहले फरवरी 2019 को जरूर याद रखे। रवा माली साल मुल्क की मईशत के लिए तबाही का साल साबित हुआ। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और कानकनी की पैदावार मनफी रही। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, फिशरीज, सर्विसेज सेक्टर भी अपना हदफ पूरा नहीं कर सके। सनती शोबे की पैदावारी ग्रोथ मनफी 2.6% रही। ज़रई शोबे में ग्रोथ का हदफ 3.5 मुकर्रर किया गया था। रवा माली साल ज़रई शोबे की ग्रोथ सिर्फ 2.7% रही। वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद।